dependent and a reference object. Some type of schema object can reference other object in their definition. For example, a view is a dependent because view doesn't contain the value of its own. It contain the subset of the value. Okay, so a view is defined by a query that references a table or other view, and the body of the subprogram can include SQL statement that reference other object. If the definition of the object A reference object B, then A is called as the dependent object. Dependency issue. If you alter the definition of a reference object, dependent object may or may not continue to work properly. For example, if the table definition is changed, the procedure may or may not continue to work without error. Okay, तो view क्या है? वो dependent है. It is contain a subset of the table. अगर आपका टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो व्यू का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा. व्यू में आपका एरर आएगा. The Oracle server automatically record the dependency among the object. To manage the dependency, all the schema object have a status that is record in the data dictionary, and you can view the status by the user object and the dictionary view. If the status of the schema object is valid, then the object has been compiled and can immediately use as a reference. If the status of the schema is invalid, then the schema object must be compiled before it can be used. So what are the dependencies are present? Like the procedure function can directly or indirectly intermediate view, table, view, sequence, procedure, function, package. So these are called as the dependency. Means it is dependent to the your SQL table. Managing the local dependency. In the case of local dependency, the object are in the same node. So every object are present in a same node or same location. The Oracle server automatically manage all the local dependency. जो same node में है वो automatic उसको manage कर देगा. Using the database internal depends on the table. When a refer object is modified, the dependent object are sometimes invalidated. The next time an invalidated object is called, the Oracle server automatically recompiles it. If you alter the definition of a reference object, dependent object might or might not continue to the function without error, depending upon the type of alternation. So if you alter the definition of what reference object, मतलब अगर आप जहाँ पर फॉरेन की डिफाइन किया गया है, अगर इसको आप ऑल्टर करते हो, then from which it is dependent, it is shows an error. Starting with Oracle database 11g, create or replace synonym command has been enhanced to minimize the invalidation. Starting with Oracle database 11g, dependency are tracked at the level of element within unit. By querying the direct object dependency, we're using user underscore dependency data dictionary view column name, the name of the dependent object, type of the dependent object, the schema or a reference object, reference name, reference type, then link name. Okay, so ये सब क्या है ना, आपका जो यूजर डिपेंडेंसी है
उसका कॉलम वैल्यू। जब आप प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन करते हो तो उसमें वो डिपेंडेंट रहता है। एवरी डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। जो भी आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, जैसे कि आपका टेबल हो गया, व्यू हो गया, तो उसमें स्टेटस क्या है? एक है वैलिड, द ऑब्जेक्ट वाज सक्सेसफुली कंपाइल्ड यूजिंग करंट डेफिनेशन द डाटा डिक्शनरी। Compiled with error, the most recent attempt to compile the object produce the error. Invalid, the oracle, the object is marked as invalid because an object that is reference has changed. Unauthorized, an access on the privileges on the reference object was revoked. That is unauthorized. Then invalidation of the dependent object. Invalidation कब होगा? Now procedure A is direct dependent upon the view B. The procedure A view B में dependent है, and the B is a direct dependent on the C. The procedure A is an indirect dependent upon the table C. So direct dependency are invalidated only by changes to the reference object that affect them. Indirect dependency can be invalidated by the changes to the reference object that do not affect them. But direct dependency में क्या है? अगर procedure में change होता है, अगर टेबल व्यू बी में चेंज होता है, इट इज अफेक्टेड टू द ए। लेकिन व्यू किस में डिपेंडेंट है? टेबल सी में। अगर आप टेबल सी में कुछ चेंजेस करते हो तो ये क्या होता है ना, इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रोसीजर में चेंजेस होगा। लेकिन टेबल सी में अगर कुछ चेंजेस होता है तो डायरेक्टली इट विल चेंजेस इन द व्यू बी। सो दैट इज कॉल्ड द इनवैलिडेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी वो चेंज होगा, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी में आपका प्रॉब्लम दिखाएगा। डिस्प्लेइंग ए डिपेंडेंसी, तो आपका जो प्रोग्राम और जो जो टेबल आप डिफाइन किए हो डेटाबेस में, तो उसमें क्या क्या सारा चीज डिपेंडेंसी है, सिलेक्ट नेस्टेड टेबल, टाइप, नेम, फ्रॉम, डिपेंडेंट ट्री, ये सब दिखाएगा। नेक्स्ट कम्स टू द फाइन ग्रेन डिपेंडेंसी। Starting with Oracle Database 11G, you have access to a record that describe more precise dependency metadata. This is called as the fine-grained dependency, and it enable you to see when the dependent object are invalidated without logical requirement. तो 11G में क्या है ना, access to the record that describe more precise dependency metadata. Metadata means एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वहां पर स्टोर होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कब स्टोर होता है? जब आप टेबल क्रिएट होता है उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द फाइन ग्रेन डिपेंडेंसी। मतलब अगर आप टेबल बनाओगे तब आप लिख सकते हो डिस्क्राइब टेबल नेम, इट इज गिविंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अर्लियर ओरेकल डेटाबेस रिलीजेस the record dependency metadata. For example, PLSQL unit P dependent upon the PLSQL unit F. Okay, the PLSQL unit, एक unit है P, it is dependent upon the PLSQL unit F, or the view V dependent upon the table T with precision of the whole object. This means that the dependent object are sometimes invalidated without logical requirement. For example, if view V depend only on column A and B in table T, a column D is added to the table T, then validity of the view V is not logical. इसका मतलब क्या है? आप एक व्यू बनाते हो,
व्यू रिट्राइव करता है एक टेबल का इंफॉर्मेशन। अगर टेबल में आप कुछ भी चेंजेस करते हो, सपोज यू आर एडिंग सम अदर कॉलम, देन आपका जो व्यू प्रीवियसली आप डिफाइन किए हो उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि आप व्यू को रिक्रिएट नहीं किए हो। तो आपका व्यू जो है वो ओल्ड रिकॉर्ड दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या हो गया, आउट ऑफ डेटेड हो गया। व्यू भी इनवैलिडेटेड बाय एडिशन ऑफ द कॉलम to D table with Oracle database release 11 to adding the column D to table T doesn't invalidated view V. So what is that fine grained dependency management? In Oracle database 11G, dependency are now tracked at the level of element within it. तो एलिमेंट क्या है, आपका जो एलिमेंट है वो व्यू हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, और कोई भी PLSQL सब प्रोग्राम हो सकता है। जैसे कि आपका प्रोसीजर हो गया और फंक्शन हो गया। तो प्रोसीजर और फंक्शन आप क्यों डिफाइन करते हो ना, इट इज रिट्राइव द डेटा फ्रॉम ए टेबल। अगर आपका टेबल का डाटा ही आपका नहीं रहेगा तो प्रोसीजर फंक्शन आपको एरर ही दिखाएगा। सपोज यू आर क्रिएटिंग अ प्रोसीजर दैट इज रिट्राइव रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल द एम्प्लॉय आईडी दैट यू आर गिवन एट रन टाइम। जो एम्प्लॉय आईडी आप रन टाइम में दोगे वही इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। अगर आप टेबल को ही ड्रॉप कर दोगे और आईडी पास करोगे, इट इज नॉट showing you any kind of output. So that is completely called as a fine grained dependency. Changes to the synonym dependency. The Oracle database minimize the downtime during the code upgrade or schema merges. Okay, it is minimize the what downtime. Oracle कब डाउन होता है, जब आप कोई डाउन मतलब जो स्कीमा को अगर मर्जेस करते हो, कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग यहाँ पर पास करते हो, तो वहां पर आपका क्या होता है ना, डाउन टाइम शुरू होता है। When a certain condition and column privileges, partition and so on are made, a table or object type is considered as equivalent dependent object and no longer invalid. Okay, when a certain condition on the column, अगर आप कॉलम में कुछ कंडीशन देते हो, कुछ पार्टीशन देते हो और कुछ प्रिविलेजेस देते हो, तो अनअप्रोप्रिएटली वहां पर चेंजेस नहीं होता है। In Oracle database 11G, the create or replace synonym command has been enhanced to minimize the invalidation. Okay, तो इसलिए क्या होता है, जब व्यू बनाते हैं हम लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस। प्रोसीजर जब बनाते हैं क्रिएट और रिप्लेस, इसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आपका जो कुछ भी मॉडिफिकेशन आप टेबल में किए हो तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। तो जनरली व्हेन यू वर्क विद दैट केस, you have to use a create or replace statement. Changes to the synonym dependency. The Oracle synonym dependency is over. Now comes to the maintaining the valid PLSQL program unit. The Oracle starting with 10G release 2, you can change the definition of synonym, and the dependent PLSQL program unit are not invalidated under the following condition. The column order, column name, column data type and table are identical. The column name, column order and column data type are identical. The privileges on the newly referenced table and its column are superset of privileges of the original table. Privileges of the newly referenced table मतलब जो टेबल आप न्यूली बनाए हो
and it is referenced as a primary key, and its column are subset of the privileges of the original table. और वो column क्या है ना, it is a subset, like employee ID और एक table में employee ID रहेगा, employee table में employee ID, employee leave data table में employee ID रहेगा. So it is a subset in the leave table. These privileges must be derived through the roles one. The name and type of the partition and sub-partition are identical. The table are on the same organization type. Okay. Or object type like column are of the same type. मतलब जो प्राइमरी की फॉरेन की रेफरेंस आप पास कर रहे हो, सपोज एम्प्लॉय आईडी आपका varchar है प्राइमरी टेबल में, तो फॉरेन की जो सेकंड टेबल में भी वो फॉरेन की रहेगा, उसका डाटा टाइप सेम रहेगा. As with the dependent PLSQL program unit, you can change the definition of synonym, and dependent view are not invalidated under the condition listed in the preceding paragraph. In addition, following must be true or to preserve the valid status of the dependent view. तो valid status आपका रहना चाहिए, जैसे कि क्या है वो enabled रहना चाहिए, नहीं तो आपका कोडिंग वो एरर दिखाएगा डिपेंडेंसी में. तो गाइडलाइन फॉर रिड्यूसिंग द इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन कब रिड्यूस होगा ना, when you adding a new item to the package, add them to the end of the package. कोई भी न्यू आइटम आपको ऐड करना है तो एंड ऑफ द पैकेज में आप ऐड करो. दिस प्रिजर्व द स्लॉट नंबर एंड एंट्री पॉइंट. Then the reference of each table through a view. So when you are creating a view, it will giving a reference to the main table. Add the column to the table without invalidating the dependent view. Modify or delete the column not referenced by the view. Modify भी कर सकते हो. Object revalidation, an object that is not valid when it is referenced must be validated before it can be used. Validation occurs automatically when the object is referenced. Now, what kind of validation is present? One is compiled with error, unauthorized, invalidate. So these are the validations are present. Remote dependency. In the case of remote dependency, the objects are present in the separate node. And Oracle server do not manage the dependency among the remote schema object other than the local procedure to the remote procedure. Remote procedure मतलब क्या है ना, your data is present in another location or you can have the remotely dependency. तो वहाँ पर आपका revalidation और dependency काम नहीं करेगा. Recompilation of dependent object verify successful explicit recompilation of the dependent remote procedure and implicit recompilation. तो रिमोट में जो चेंजेस होता है, अगर आप मेन टेबल में कुछ चेंजेस करते हो तो रिमोट में उसको फिर से रीवैलिडेटेड और रिकम्पाइल करना पड़ेगा. तो अगर रिकम्पाइल करते हो देन यू आर गेटिंग द अपडेटेड रिकॉर्ड. The concept of timestamp checking and signature checking. Timestamp checking is what? Now each PLSQL program unit carries a timestamp. मतलब जब कोई भी PLSQL program execute होता है वो particular time में execute होता है.
So whenever you alter the PLSQL program unit or relevant schema object, all the dependent program unit mark as invalid and must be recompiled. अगर कोई भी changes होता है जो आपका PLSQL procedure and सब program है वो invalidated हो जाता है, फिर से आपको recompile करना पड़ता है. Signature checking for each PLSQL program unit, both timestamp signature are recorded. Signature मतलब the name of the construct, कौन सा पैकेज और कौन सा प्रोसीजर में आपका अपडेट हुआ है, द बेस टाइप ऑफ पैरामीटर, द मोड ऑफ पैरामीटर लाइक इन आउट, इट इज आल्सो यूज्ड. टाइम स्टैम्प एक होता है, इट इज एवरी ऑल्टरनेशन और एनी चेंजेस इज रिक्वायर्ड ए पर्टिकुलर टाइमिंग, और कौन सा प्रोसीजर और कौन सा यूजर चेंजेस होता है उसका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा. Then आपका signature mode, the signature procedure is, it contains the name of the procedure, data type of the parameter, mode of the parameter, in out, in and out. तो ये आपका signature mode रहेगा. Signature of the remote procedure is saved at the local procedure. When executing the dependent procedure, the signature of the reference or remote procedure is also compared. वो चेक करेगा अगर आपका मेन प्रोसीजर करेक्ट है और नया वैल्यू रख रहा है, आपका रिमोट वैल्यू जो है उसमें वो वैल्यू अपडेटेड हुआ है कि नहीं. अगर अपडेटेड नहीं होगा उसको रिकम्पाइल करेगा इन द केस ऑफ सिग्नेचर. ऑन सक्सेसफुल रिकम्पाइलेशन कब होता है? रिकम्पाइलिंग द डिपेंडेंट प्रोसीजर फंक्शन इज ऑन सक्सेसफुल, द रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रीनेम्ड. अगर आपका कोई रेफरेंस टेबल है वो ड्रॉप हो गया और रीनेम हो गया, वहां पर होगा. द डाटा टाइप ऑफ द रेफरेंस कॉलम इज चेंज. डाटा टाइप पे अगर चेंज हो जाएगा वहां पर भी एरर आएगा. रेफरेंस कॉलम इज ड्रॉप. रेफरेंस व्यू इज रिप्लेस्ड बाय द व्यू विद अ डिफरेंट कॉलम. देन पैरामीटर लिस्ट ऑफ ए रेफरेंस प्रोसीजर इज मॉडिफाइड. पैरामीटर लिस्ट पे आपका अगर मॉडिफाई हो जाता है वहां पर रिकम्पाइलेशन में आपका एरर आता है. Successful recompilation, the reference table has a new column. रेफरेंस टेबल में अगर न्यू कॉलम होता है वहां पर सक्सेसफुल होगा. डाटा टाइप ऑफ द रेफरेंस कॉलम हैज नॉट चेंज. प्राइवेट टेबल इज ड्रॉप बट द पब्लिक टेबल हैज द सेम नेम एंड स्ट्रक्चर इज एग्जिस्ट. वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा. द PLSQL बॉडी ऑफ रेफरेंस प्रोसीजर हैज बीन मॉडिफाइड एंड रिकम्पाइल्ड सक्सेसफुली. तो ये सब सिनेरियो में आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा. और डिपेंडेंसी कब मिनिमाइज होगा? जब आप रिकॉर्ड यूज कर रहे हो, रो टाइप एट्रीब्यूट यूज करो, तभी आपका कोई अगर कॉलम का डाटा टाइप चेंज होगा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा. वेरिएबल का आपको डिक्लेयर करना है, टाइप एट्रीब्यूट यूज करो. जब आप कोई भी टेबल रिट्राइव करते हो स्टार यूज करो एंड इंक्लूडिंग इंसर्ट स्टेटमेंट. So this is all about your PLSQL chapter. So basically you got question from chapter 1 to 9 chapter. ट्रिगर तक आपको क्वेश्चन मिलेगा. 10, 11, 12 इट डजंट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. उसमें कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा. तो और जितना चैप्टर है वहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा. एंड नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर ए DBA एग्जाम, अगर आप कोई भी डेटाबेस DBA एग्जाम देना चाहते हो, you can convert your PLSQL exam as a DBA if you have Oracle certificate. and आपको DBA का एग्जाम देकर दोनों का अगर आपको लाना है सर्टिफिकेशन, that voucher is your 7,000 जब आप खरीदोगे. but now it is reduced for the skill development program. This exam is conducted by the IDCT and your examination cost fee is 1,000. So after giving a exam you are getting
डिजिटल सर्टिफिकेट, आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आपका घर का एड्रेस में आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट इज कंडक्टेड बाय द ITCT कंपनी। इट इज ISO certified company which is conducted all the skill development program related exam. Okay, and it is from the company is established in the 1999. Okay, so it's a world of 21 years. Okay, तो ये सब स्किल डेवलपमेंट का आपका एग्जाम कराता है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर दैट एग्जाम तो आप एग्जाम दे सकते हो, मीन्स आपका एग्जिस्टिंग एग्जाम को आप कन्वर्ट करा सकते हो। एंड इफ यू डोंट गो फॉर इट देन यू नॉर्मली गिव द एग्जाम एंड यू गॉट द सर्टिफिकेट। इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू वांट टू गो फॉर दैट यू कैन गो फॉर द DBA सर्टिफिकेशन। यू कैन गिव दैट एग्जाम इन द लैटर बेसिस। आप जब भी वाउचर खरीदोगे तभी भी आप एग्जाम दे सकते हो। बट as this is giving a scholarship for the exam, so you can got for the 1000 rupees and you can verify your certificate within this portal। मैं सुशील को बताया था आपका जो सर्टिफिकेट है तो आप ITCT edu.in यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई में क्लिक करके जो आपका सर्टिफिकेट नंबर आएगा वो नंबर आप यहाँ पर डालकर सी रिजल्ट अगर करोगे तो आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा। सो फॉर दिस सर्टिफिकेशन यू रिक्वायर ए डॉक्यूमेंट। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट? आपका जो है क्या है ना, एक पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में रहेगा, और आपका जो आधार कार्ड का स्कैन कॉपी, और लास्ट जो सेमिस्टर और जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई किए हो आपका एजुकेशन में उसका एक स्कैन कॉपी आपको भेज कर रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर योर PLSQL एग्जाम। as the information give you, I have to register and you go for it। okay, सर्टिफिकेट आपको सॉफ्ट कॉपी 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगा एंड यू आर वेरीफाई हियर। और जो हार्ड कॉपी है यू विल गेट मैक्सिमम, यू कैन थिंक अबाउट 1 month लगेगा, क्योंकि दिस सर्टिफिकेट विल कम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ड्यू टू कोविड द ट्रेन जो है वो ज़्यादातर जाता आता नहीं है, सो इट विल टेक द टाइम। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। ओके, ये चैप्टर खत्म हो गया। एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे ऑन द डेट ऑफ 27। 7 days आपके पास है, तो अगर कोई भी डाउट इस दौरान रहता है और प्रैक्टिकली रहता है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एंड आई एम कनेक्टिंग थ्रू द जूम। 27 में आपका एग्जाम होगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ऑन योर टाइम यू गिव द एग्जाम एंड on the 2 hours or 2.5 hours try to submit the exam। जब भी ओपन करोगे तो 2-2.5 घंटा के अंदर आपको सबमिट करना। ओके, सबमिट करने पर आपको जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना है। देन आपका जो नॉर्मल सर्टिफिकेशन है तो यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट। एंड ये हो गया आपका वेंडर सर्टिफिकेशन। इसके लिए आपका जो जो डॉक्यूमेंट है आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए देन बताना, देन यू कन्वर्ट योर एग्जाम टू अ DBA। ओके, any question, any doubt for exam or changing the time for exam? अगर कुछ है तो बोलो। सर हाँ सर जो एग्जाम टा नेक्स्ट मंथ रे कले होबो कि सर, माने सेप्टेम्बर 2-3 अडगु? अक्टोबर, सॉरी हाँ अक्टोबर 2-3 अडगु। तमे देखो कौन मैं 1 तारिख छाड़ी भी तो 1 वीक दरकार मते तो। अच्छा तबे तमे दबो 2 तारिख आउ के सब
सर मोर मूवी अक्टूबर है। आज्ञा सर एग्जाम्स अच्छी तब है अच्छा आकाश सर मूवी सोशल ज्यादा दे दे सर। राहुल तुम कब दोगे? हाँ मतलब अक्टूबर में? हाँ अक्टूबर में तुम भी दोगे अक्टूबर में? अच्छा ठीक है। क्या है? सुना ही नहीं दे रहा है। अक्टूबर में चलिए। मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारा आवाज कट कर आ रहा है। ओके तो अक्टूबर अक्टूबर 3। यस सर। ओके तो अक्टूबर 3 में मैं एग्जाम शेड्यूल करता हूँ और यस सर। ये जो डीपीए एग्जाम बट यू कैन गो फॉर इन दिस वीक। ओके तो 27 तारीख के अंदर आपको अगर करना है तो मुझे कंफर्म करा देना। ओके एंड दैट एग्जामिनेशन फीस इज 1000। अगर नहीं देना है तो आप नॉर्मल एग्जाम दोगे, अगर देना है तो मुझे कंफर्म कर लेना। जस्ट हाँ राहुल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म हम्म हम्म। वो ओरेकल सर्टिफाइड एग्जाम है, वो आपको सर दे देंगे। हाँ नहीं आपका जो है वो डीबीए का क्या है, कैसे आएगा? आपका और 2 पेपर करने से आएगा ना। यहाँ पर ओरेकल पेपर का मिलेगा, जो ओसीजीपी जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपको एनआईटी से मिल जाएगा। हाँ हाँ आप आपका 4 सर्टिफिकेट ही मिलेगा जो है, आपको जो बताया गया था, बट इट इज ए डीबीए एग्जाम। That you are getting from this. अच्छा, any other doubt? So we schedule the exam for 3, हाँ? सर हाँ सर 27 को अगर मतलब सर डीबी का एग्जाम होता है तो फिर सर उसका आप बोल रहे थे कि दोनों एग्जाम मिला के होगा ना, नहीं नहीं डीबी और पीएल स्किल का? 27 के अंदर आपको करना है, हाँ डीबीए। अच्छा रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ फिर आपका आ जाएगा। आप 3 तारीख को जो एग्जाम दोगे इट इज मैपिंग टू दैट। ओके
अच्छा, मतलब सर क्वेश्चन सेम रहेंगे कि डिफरेंस रहेंगे? सेम क्वेश्चन रहेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा। मैपिंग कर देना है एक ही साथ, आप कर सकते हो, इसका दोबारा कोई एग्जाम नहीं होगा। नहीं तो आप Okay, अगर sir. नहीं करोगे तो बाद में भी आप कर सकते हो, बट एट दैट टाइमिंग द वाउचर कॉस्ट विल बी डिफरेंट। मतलब 7000 में होता है कि 8000 जो भी होगा आप खरीद करोगे, इट इज नॉट कंपलसरी। ओके, अगर आप सर इसको करने से फायदा क्या कुछ होगा? इसमें आप यू आर सर्टिफाइड एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है, जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, यू आर गेटिंग फ्रॉम Oracle SQL and PL SQL as a different part. Okay, but Yes, even after giving that exam, you are having a certified DBA. मतलब आप DBA का जो पोजीशन आएगा, you can apply and you can consider as a DBA part, database Okay. analyst. Okay, this is a Yes, open sir. source exam. आप खुद भी कर सकते हो जो वाउचर खरीद कर। ओके, एंड हियर it is a skill development program, it is providing you as a scholarship due to covid. कोविड है वो लेसन में दे रहा है 1000। Yes, sir. तो अगर देना चाहते हो तो यू गो फॉर दैट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं। और आप Okay, इसको sir. वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यू कैन गो टू दिस साइट एंड यू वेरीफाई इट। ओके, तो जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर Yes, आप sir. वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज ISO सर्टिफाइड कंपनी। ओके, Yes, sir. so everybody, if anybody want to verify your certificate whether it is true or not, they can verify from this side. आपका सर्टिफिकेट में रहेगा और आपका सर्टिफिकेट में फोटो भी आएगा। ओके, ओके, सो आई वाइंड अप इट। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, सो आफ्टर दिस सेशन यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, सर्टिफिकेशन और चीज ओके, Yes, sir. और कोर्स में कोई डाउट होगा पूछना। ओके, इंडिविजुअली जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल करना, आई विल क्लियर योर डाउट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम।